آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، ملتان سیوریج کی ذمہ داریاں جو ادا کرنے والا محکمہ ہے، جو لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کا ذمہ دار ہے واسا، اس کے اپنے ہی اندر سنگین مالی بے ضابطگیاں، کرپشن اور انتظامی امور کے حوالے سے جو غفلت ہے، اس کے جو ہوشربا الزامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف جو عوام ہے سیوریج کے اور صاف پانی کے مسائل میں گھری ہے، اور دوسری طرف کروڑوں کے منصوبے یا تو مکمل ہی نہیں ہوتے یا کاغذوں میں مکمل کر دیے جاتے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت میں ایک اہم انکوائری میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹیوب ویلز، ٹربائنیں، موٹریں اور قیمتی مشینریز جو ہے یا تو غائب کر دی گئی ہیں اور یا سکریپ کی صورت میں خورد برد کر لی گئی ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی حالت زار، جعلی مرمتی بلز اور ادھورے کاموں کی ادائیگی جیسے معاملات جو ہیں عوامی پیسوں کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ایک افسوسناک المیہ تو یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو کرپٹ افسران ہیں وہ عرصہ دراز سے اپنی سیٹوں پر براجمان ہیں، بلکہ اسی طرح کرپشن کرتے جا رہے ہیں۔ کرپشن کے مرتکب میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ سیٹوں کی ادلا بدلی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی سیٹوں پر براجمان کرپشن کے جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن جو نیچے کام کرنے والے ہیں ان کو بر وقت تنخواہیں بھی نہیں ملتی، اور جب افسران کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو جو آواز ہے وہ بھی دبا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اینٹی کرپشن میں ایک درخواست دی گئی ہے، اس درخواست کے حوالے سے واسا پر جو الزامات سامنے آئے ہیں آج اس پر بات کرتے ہیں۔ میرے سامنے سینئر صحافی اویس شیرازی موجود ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان الزامات کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کریں گے، تھوڑی ان سے بھی ان کی رائے لیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا، اینٹی کرپشن میں جو درخواست دی گئی ہے اس کے مطابق جو واسا کے ٹیوب ویلز ہیں وہ سب کے سب فعال نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اچھا میم، یہ تو کوئی ایسے ہے نا کہ ہمیں کہیں سے کوئی اطلاع ملے یا کوئی فرضی بات کریں، وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ واسا کے ملازمین ہیں جنہوں نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو درخواست دی ہے، جس میں یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ٹیوب ویلز کے بارے میں، اس کے علاوہ درجنوں معاملات کو ہائی لائٹ انہوں نے کیا ہے جو واسا کے اپنے ملازمین ہیں، یعنی کہ یہ باہر کسی شہری نے آواز نہیں اٹھائی، سول سوسائٹی میں سے کسی نے درخواست نہیں دی، یہ گھر کے بھیدی ہیں یا انہیں کے ساتھ کرنے والے یا ان کے ماتحت ملازمین ہیں جنہوں نے یہ درخواست اینٹی کرپشن کو دی ہے اور اس پہ کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ ابھی آپ نے سوال کے ٹیوب ویلز کے بارے میں، 114 جو ٹیوب ویلز ہیں وہ لگے ہوئے واسا ملتان کے زیر انتظام، جس میں صرف 70 یعنی کہ چل رہے ہیں اور تقریباً 44 سے 45 ٹیوب ویلز ہیں جو بند ہیں۔ آپ کو عموماً دیکھنا پڑتا ہوگا، اخبارات سے پتہ لگتا ہوگا اور آپ کے ارد گرد کو معلوم ہوتا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا عوام ہے وہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارے جو پائپس ہیں ان میں پانی نہیں آ رہا، پریشانی میں ہوتی ہے نا۔ ظاہری بات ہے جب صبح آپ اٹھیں، بچوں نے اسکول جانا ہے، صاحب نے ڈیوٹی پہ جانا ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ پانی نہیں ہے تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ تو جو غیر فعال ٹیوب ویلز ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، تو اس حوالے سے بجٹ تو آ رہا ہے نا اتنے ہی ٹیوب ویلز کا جتنا آپ نے بتایا کہ 144، اور اس میں سے کتنے آپ نے بتایا 70 یعنی کہ چل رہے ہیں، 70 چل رہے ہیں، تو باقی کے فنڈز کہاں ہیں؟ باقی کیوں نہیں چل رہے؟ دیکھیں نا، فنڈز مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 114 میں سے 70 اگر چل رہی ہیں، 44 بند ہیں، تو جو فنڈز آئے گئے ہیں ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور درخواست میں بھی جو یہ نا ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ایشو یہی تھا کہ فنڈز کا جو بے دریغ استعمال ہے اس پہ کوئی بھی چیک نہیں ہے۔ افسران کو جو فنڈ ملتا ہے اس میں غبن کی جا رہی ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ان فنڈز کو اڑایا جا رہا ہے۔ اور جب اس پہ بات کی جائے تو ان کی آواز کو دبانے کے لیے جو ملازمین ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف منفی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، بالآخر تنگ آ کر ملازمین نے یہ درخواست اینٹی کرپشن میں جمع کرائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کس طرح کارروائی کرتے ہیں۔ اویس صاحب، 10 سے زائد کوارٹرز کی تعمیر کا بھی اس میں ذکر ہے، وہ بھی تعمیر نہیں ہوئی۔ دیکھیں نا، 10 سے زیادہ کوارٹر سے مراد یہ ہے کہ لاکھوں کا نہیں، یہ کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے یعنی کہ اس درخواست کے مطابق جو کہ دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کوارٹرز کے لیے بھی فنڈ حکومت نے جاری کیے ہیں، فنڈ جاری ہو چکے ہیں، کوارٹرز نہیں بنے، جو مقررہ مدت ہے وہ گزر گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنڈز بھی
तो क्या कहते हैं कि जबरदस्त हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इस तरीके से सीट्स की अदला बदली हो जाती है, लेकिन इस तरह के जो करप्ट अफसरान हैं वो अपनी सीटों पर अरसे दराज से बुरा जमान चले आ रहे हैं, लेकिन कोई पूछ पड़तीत नहीं है। अच्छा, इस दरखास्त के मुताबिक बड़ा अहम जो पॉइंट रेज किया गया वो ये बाकायदा अफसरान के नाम लिए गए हैं जो मुलाजमीन की जानिब से, जिसमें जिक्र किया है डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग है अब्दुल सलाम है, डॉक्टर वक्स है आरिफ अब्बास साहब है, और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस सईद डोगर साहब है, कि ये वगैरह भी दिया गया। इसका मतलब है और भी जो अफसरान हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, शामिल हैं। और इनके बारे में जो मुलाजमीन की तरफ से दरखास्त में एक बात वो बताई गई है कि ये अफसरान यानी कि एक देसी लफ्ज़ है अदल बदली, यानी कि भाई कभी तो मेरी सीट पे कभी मैं तेरी सीट पे, बाहर से किसी और अफसरान को इन सीट पे नहीं आने दिया जा रहा। यानी कि ये जो 4 या 5 या 7 अफसरान हैं ये ही एक वो कहते हैं म्यूजिकल चेयर, वही गेम खेल रहे हैं मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ। अच्छा, जिस तरीके से ट्यूबवेल का इसमें जिक्र है, इसी दरखास्त में एक जिक्र है, मतलब साफ पानी की फराहमी जो है वासा की जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से भी बताया गया है कि इतने लगाए गए हैं, इतने गैर फाल हैं, इतने बंद हैं। अच्छा, फिल्ट्रेशन प्लांट्स में सबसे पहले तो अहम चीज़ ये है कि जो आजकल हमारा ज़ेर ज़मीन पानी है वो हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से काफ़ी नीचे जा रहा है और आलूदा पानी मिल रहा है, तो उसके सद्देबाब के लिए हुकूमत ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मंसूबा शुरू किया, जिसकी वजह से हुकूमत के मंसूबे ये था कि जो अवाम है उनको साफ पानी की सहूलत उनके घर के नज़दीक तरीन मैसर हो। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि इस दरखास्त के मुताबिक तकरीबन 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंस्टॉल हैं वासा मुल्तान के ज़रिए इंतजाम, और सिर्फ 45 काम कर रहे हैं। सर बाकी के 20 इनका फंड्स, अच्छा, जो 20 प्लांट बंद हैं, आप फंड्स को एक साइड पर रखें, आप गबन हो रहे हैं नहीं हो रहे उस पर एक साइड पर रखें, लेकिन जो 20 प्लांट्स बंद हैं और उन प्लांट्स के थ्रू जिन लोगों को साफ पानी की सहूलत मैसर थी वो खत्म हो गई, तो हमारे अवाम, इसका मतलब ये है कि इनकी गफलत की वजह से, इनके ये जो फंड्स की खुरबुर्द की वजह से जो वहाँ के रहने वाले अवाम है वो आलूदा पानी पी रहे हैं। आलूदा पानी की पीने की वजह से हमारे बच्चे, हमारी खवातीन और हमारी अवाम और सेहत के मसाइल से 2-4 हैं। तो इसका जिम्मेदार फंड्स खुरबुरने वाले तो हैं, लेकिन जो उनकी सेहत की खराबी के जिम्मेदार भी ये नाअहल अफसरान है। जी बिल्कुल, सेहतों से खिलवाड़ भी किया जा रहा है, और जब मुख्तलिफ इलाकों के लोग साफ पानी की फराहमी के हवाले से, उसमें तादुल के हवाले से रोते हैं और उसमें शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो इस महकमे की तरफ से, वासा की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती और शिकायत ये की जाती है कि फंड्स की कमी है। सर इसके हवाले से क्या कहेंगे कि करोड़ों का गबन हो जाता है, कागजी कार्रवाई कर दी जाती है, मुकम्मल नहीं किए जाते मंसूबे, उसके बावजूद शिकायत ये आती है कि कहीं कोई सीवरेज का मसला है, कहीं पाइपलाइनें नहीं डली हुई, कहीं पर पानी खड़ा है या साफ पानी की फराहमी नहीं है। तो सुनने में यही आता है, कहा यही जाता है जिनके मुलाजमीन होते हैं, एसडीओज होते हैं, एहलकार, कि जी फंड्स की कमी है। तो क्या फंड्स की कमी है? देखें, फंड्स की कमी ये है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि अफसरान की भारी भरकम तनख्वाह हैं। मैं इस दरखास्त में एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प देखने को मिली कि एक टेंडर जारी हुआ वाटर सप्लाई का 100 मिलियन रुपए का, 100 मिलियन रुपए का कितना भारी भरकम टेंडर है। तो उसकी मिसाल ये है कि अगर हम आगे चलें तो उसमें एक ठेकेदार है, उनको तकरीबन 4,71,81,000 रुपए की जो सिक्योरिटी की रकम है वो वापस की गई है। टेंडर अप्रूव हुआ और रकम वापस कर दी गई, काम अधूरा रहा। मंसूबा अभी अधूरा है। जो उनको सिक्योरिटी की रकम है, पेपरा रूल्स के मुताबिक आप सिक्योरिटी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं कर सकते जब तक आप जो ठेकेदार का किया गया काम है उसकी क्वालिटी से और जो उसने काम तकमील तक पहुंचाया है उससे आप मुतमईन नहीं होते। यानी मंसूबा मुकम्मल हुए बगैर सिक्योरिटी की रकम वापस कर दी गई। अब इसके पीछे वजूहत क्या होंगी? जो एक आम सा बंदा भी होगा, इस दरखास्त के मुताबिक जो बात जाहिर हो रही है वो ये कि शायद जो अफसरान हैं उन्होंने सिक्योरिटी को वापस की है। सर इसमें क्या समझते हैं? तो उनका हिस्सा इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि हम यहाँ से इस सीट से कहीं और शिफ्ट हों या हमारी अदली बदली हो, इस सीट पे होते हुए हम अपना जो हिस्सा है ना, काम चाहे भाड़ में, अवाम की जो मुश्किलात हैं वो उनको कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना जी, लेकिन जो मेरा हिस्सा है ना, हिस्सा बकदर जुस्सा, वो मुझे मेरी जेब में फौरन जाना चाहिए। सर इस दरख्वास्त के मुताबिक एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि वाटर सप्लाई का ये जो टेंडर मंजूर हुआ 1000 मिलियन रुपीस का, तो आपने बताया कि ये मुकम्मल हुए बगैर,
बगैर इसकी सिक्योरिटी जो है ठेकेदार को वापस कर दी गई, इसमें कौन कौन से अफसरान मुलव्वस? अच्छा, ये जो 1,000 मिलियन का प्रोजेक्ट है, इसमें तो सिर्फ 4 करोड़ सिक्योरिटी, यानी कि ये सिर्फ एक ठेकेदार है, यानी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें कई ठेकेदार इन्वॉल्व होंगे। इस मंसूबे में के जो कई मराइल हैं उसमें कई ठेकेदारों को शामिल किया गया होगा। अगर एक ठेकेदार को सिक्योरिटी वापस की गई है और उसका ये स्कैंडल मंजर आम पे आ गया है, और जिनका स्कैंडल मंजर आम पे नहीं आया, जिनको वापस की गई वो हिडन है, उसके मामले में क्या बात की जाए। ये है जिम्मेदारी जो दरखास्त दी गई है डॉक्टर एंटी करप्शन साहब को कि वो इस दरखास्त को फौरन इस पे तवज्जो दें। कौन कौन से अफसरान देखें ना, जैसे प्रोग्राम के ये तो जो दरखास्त दी मुलाजमीन ने उसमें बाकायदा अफसरान के नाम मेंशन किए हैं। डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल सलाम साहब हैं, डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास साहब हैं, और डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस सईद डोगर साहब, और आगे लफ्ज वगैरह भी लिखा गया है। यानी कि ये 3 मरकजी किरदार हैं। इसके अलावा और भी अफसर हैं जो कि ये जो एक घुमन घेरी है इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। ये जो चक्करबाजी जो अवाम को दी जाती है, जो वहां के छोटे वर्कर को दी जाती है, उसमें इनके अलावा और भी जो किरदार है वो मुलव्वस हो सकते हैं। सर, जिस तरीके से इनके अपने ही मुलाजमीन ने इनके अपने अफसरान के खिलाफ जो एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी गई है, तो ज़ेरे अल्तवा जो दरख्वास्तें हैं क्या ये दबा दी जाती हैं कि इंसाफ नजर नहीं आता, कोई कार्रवाई नजर नहीं आती, कोई पेशरफ नजर नहीं आती, और यही करप्ट अफसरान जिनका भी आपने जिक्र किया है, जिस तरह से डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल सलाम साहब हो गए, डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास साहब हो गए, और डायरेक्टर फाइनेंस सईद डोगर साहब हो गए, ये फिर भी अपनी सीटों पर बुराजमान नजर आ रहे हैं। अफसरान बाला जो हैं उनको इल्म नहीं है, उनको निशानदेही नहीं की गई, उन तक रिपोर्ट्स नहीं पहुंचती। क्या मसला क्या है? अच्छा, ये जो मैं अफसरान जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि ये ताकतवर लॉबी हैं, इनको कोई सियासी या किसी और तरह की पुष्टपनाही हासिल है कि इन तमाम तर मामलात में मुलव्वस होने के बावजूद ये अपनी सीटों पर भी विराजमान है, इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही। अच्छा, ये जो मुलाजमीन दरखास्त दी है, इनमें से चंद मुलाजमीन से जो हमारी बात, अच्छा, ये सब मुलाजमीन किसके जवाब दे हैं, पहले मुझे ये बताइए। एमडी वासा? बिल्कुल। अच्छा, तो एमडी वासा इस सारे मामले में चुप क्यों नजर आ रहे हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब मुलाजमीन से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जब हम दरखास्त देते हैं किसी अथॉरिटी को या अफसरान को, तो सुर्ख फीता ऐसा लगा दिया जाता है और उस पे पैरवी नहीं की जाती, उस पे ये जो हमारी दरख्वास्त जो पॉइंट्स हैं उस पे हमें नहीं बुलाया जाता, हमारे से जो रद्द अमल है वो नहीं लिया जाता, हमसे नहीं पूछा जाता कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इसका आपके पास क्या प्रूफ है, और इस मामले को इतना तूल दे दिया जाता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल, कि आखिरकार जो मुलाजमीन है वो थक हार कर यानी कि मायूस होकर घर बैठ जाते हैं। यानी कि इस इशू को इतना सुस्त कर दिया जाता है कि जो बेचारा मुद्दई होता है वो थक हार कर उसका सांस ही फूल जाता है और वो उसकी पैरवी करने भूल जाता है। तो इस दरख्वास्त के मुताबिक और जो अभी गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक वासा के हवाले से उसके अपने मुलाजमीन भी परेशान हैं और अवाम भी परेशान है। जाहिर बात है, जब मंसूबे मुकम्मल नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते, तो उसकी परेशानी मुलाजमीन को तो होती है कि उनके साथ हो रहा है, उसकी परेशानी अवाम को भी होती है। ये देखें ना, मुलाजमीन परेशान है कि हमें तनख्वाहें नहीं मिलती। आप अमूमन अखबारात में देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, दरख्वास्त से हट के हमें अखबारात में पढ़ने को मिलता है कि वासा मुलाजमीन को इतने माह की तनख्वाह नहीं मिली, या उनको ये अलाउंस नहीं मिला, ये अलाउंस नहीं मिला। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो अफसरान के अल्लाह तल्ले जा रही हैं, अफसरान की जो अयाशी है वो ख़त्म होने को नहीं आ रही, उनको जो लाइफ स्टाइल है वो इनका लग्जरी किस्म का हमें नजर आता है। लेकिन जो मुलाजमीन हैं उनकी हालत भी हमें ऐसे समझे हमें बेजार से नजर आती है। और आप मुल्तान शहर के मोहल्लों में जाएं, मुल्तान शहर की गलियों में जाएं, सड़कों पर जाएं, आपको जनाब पानी खड़ा नजर आएगा मुख्तलिफ गलियों में, आपको जो एक वाटर सप्लाई के लाइंस हैं वो आपको जैम नजर आएंगी, और उसका रिजल्ट ये निकलता है अमूमन तो ये होता है कि पाइप लाइन्स की सफाई वक्त पे ना होने की बिना पर जिन घरों में पानी जा रहा होता है वो भी आलूदा पानी पीने पे मजबूर होते हैं। तो जाहिर बात है अफसरान को अपने अल्लाह तल्ले कंट्रोल करके जो उनके मुलाजमीन हैं, जो उनके वर्कर्स हैं, जाहिर बात है आपके वर्कर्स आपसे मुतमईन होंगे तो वो उनकी कारकर्दगी में भी निखार आएगा। जब आप वर्कर्स के जो बुनियादी जरूरियात है उनको नहीं पूरा करेंगे तो जाहिर बात है वो काम से जी चुराएंगे, और जब वो काम से जी चुराएंगे तो जो एक वासा को बनाया गया था अवामी फलाह के लिए, तो जो अवामी फलाह के मंसूबा जाते हैं उनके असरात अवाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, शुरुआत में आपसे जिक्र क्यों है इसी दरखास्त के हवाले से, ट्यूबवेल्स के हवाले से, ट्यूबवेल्स दफातर के ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के बिल जो हैं फर्जी बनाए जा रहे हैं।
ऑडिट क्यों नहीं हो रहा? कौन करेगा ऑडिट? अमूमन जब पानी नहीं आता ना या कोई मसाइल होते हैं और जब आवाम राब्ता करती है तो वो ये वो कहते हैं कि हमारा ट्यूबवेल खराब है या हमारा ट्रांसफार्मर जला होगा है। इन्हीं मुलाजमीन से चंद से बात हुई है, मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। तो उनके मुताबिक कि मोटर जली हुई नहीं होती, लेकिन मोटर जल भी जाती है, मोटर की मुरम्मत हो भी जाती है, मोटर लग भी जाती है, 3 दिन बाद मोटर फिर लग भी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज कि जो मोटर अपनी जगह से उखड़ भी गई, मुरम्मत भी हो गई, लग भी गई, इसका मतलब है वो मोटर वहां से हिलनी चाहिए, लेकिन मोटर बगैर हिले उतर भी जाती है, वाइंड भी हो जाती है, दोबारा लग भी जाती है, उसके बिल भी बन जाते हैं, उसकी अदायगी भी हो जाती है। यार ये क्या यानी जब बारिश और आंधी आती है तो ईद हो जाती है, इनका सीजन होता है। हाँ, जब बारिश और पानी, अगर कोई मोटर नहीं भी खराब हुई ना तो उसने खराब होना है। और आप अमूमन देखेंगे जब बारिश तेज आती है या पानी आता है तो उसके बाद अमूमन हमें सुनने को मिलता है कि ट्रांसफार्मर जल गए हैं, मोटरें जल जाती हैं। आपको अवामी फलाह के लिए इदारा बनाया गया था, आपको अवाम की खिदमत के लिए अपॉइंट किया गया था, तो आपको पेशगी इक़दामात करने चाहिए। जो जारी बात गफलत कर रहे हैं। बहरहाल इस दरख्वास्त के मुताबिक जो पॉइंट रेज किए गए हैं और मुलाजमीन ने जो दरख्वास्त दी है उसमें अफसरान बाला को ये बड़े ऐसे समझे संजीदा किस्म के चार्जेस हैं। अगर अब ये देखें ना, इसमें कई चार्जेस तो ऐसे हैं जिसमें एक तो शिक ऐसी इसमें कि मुलाजमीन ने मुतालबा किए बाकायदा कि जो एंटी करप्शन के इदारे वाले हैं वो आए और जो है ना जो इनके दफातर हैं, जो उनका रिकॉर्ड है उसको कब्जे में लें। अगर रिकॉर्ड को कब्जे में लेने के बाद उसकी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए तो इसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई माली जो गबन है वो सामने आएंगे और यानी कि ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आएंगे कि वो उन मुलाजमीन के मुताबिक कि अकल दंग रह जाएगी। वो हमारी सोचों से भी ज्यादा मामला जो है ना वो गंभीर हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं कि इसमें लिखा हुआ है कि अमूमन तो ऐसे होता है कि जब रिकॉर्ड चेक करने की बारी आती है तो या तो रिकॉर्ड चोरी करवा दिया जाता है या आग लगवा दी जाती है, ठीक है ना जी। और यानी कि आप ये देखें कि इतनी दी दलेरी कि जो भी इनको महसूस होता है कि हमारा रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, जारी बात है जिन मुलाजमीन ने दरख्वास्त के बगैर ये नहीं हो, जिन मुलाजमीन ने दरख्वास्त दी है वो भी मंजर आम पे हैं। अगर वो गलत है तो उनसे जवाब तलबी की जाए, नहीं तो दूसरा रास्ता तो यही है कि उन अफसरान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए जिन्होंने अपने वर्कर्स के हकूक का ख्याल नहीं किया, जिन्होंने अवाम की फलाह का ख्याल नहीं किया, जिनकी वजह से मुल्तान शहर जैसे एक अजीम शान जो इलाका है अपनी खूबसूरती की बिना पर, अपनी तारीखी हैसियत से वो यानी कि गंदे पानी की वजह से रोजाना हमें कहीं ना कहीं किसी इलाके में कोई ना कोई मसला देखने को आता है, सुनने को मिलता है, ठीक है ना जी। तो खुदारा हम जो अफसरान बाला हैं जो कि जिम्मेदारान हैं, अहले इक़्तिदार, 1 साल से ज्यादा हो गया है। जी अहले 1 साल का अर्सा कम नहीं होता मैडम, 1 साल का बड़ा कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि बड़ा ताकतवर। अच्छा अवैध साहब, देखने में अब ये एक जो स्कैंडल था देखने में, अब ये हमारे सामने मंजर आम पर आया, ऐसे बहुत से स्कैंडल्स होंगे, लेकिन ये जो करप्ट माफिया है, जिस तरह से ठेकेदारों को रकूम वापस कर दी जाती है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, उनको जो सिक्योरिटी होती है वापस दे दी जाती है, तो इस तरह के ठेकेदार, एक तो ऑडिट नहीं होता, दूसरा इस तरह के ठेकेदारों को अभी तक नहीं देखा गया कि ब्लैक लिस्ट किया गया। अच्छा, ये ना बड़ी आपस में इनकी बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है। वो कहते हैं ना कि जिस तरह का बंदा होता है उसको सोबत भी उस तरह की मैसर आती है। अपना नेटवर्क वैसे ही अफसरान करप्ट हैं तो ठेकेदार भी उनको यानी कि वो कोशिश करेंगे कि अपने साथ अटैच करें। यानी कि एक ये बहुत बड़ा गैंग है जो मिलजुल कर जो है ना हमारे जो अवाम के टैक्सों से जो इदारे बनाए गए थे, इन अफसरान को अवाम की खिदमत के लिए अपॉइंट किया गया था, ये उल्टा मिलकर हमारी फलाह की बजाय हमें लूट रहे हैं, हमारी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं, और जो अपने वर्कर्स हैं, काम करने वाले, उनको भी उनके लिए बेजा परेशानी का सबब बनते हैं। अच्छा, वैसा अगर इसी दरखास्त को देखा जाए तो इसमें मतलब बताया गया है कि किस तरीके से बंदरबाट हो जाती है, बड़े बड़े मंसूबों को मुकम्मल नहीं किया जाता और रकूम आपस में बांट ली जाती है। इसी वजह से गरीब आवाम जो है, मुलाजमीन है,
ان کو بھی تنخواہیں نہیں دی جاتی. تو یہ درخواست جو ہے یہ نشاندہی کرتی ہے, پروف ہے اس بات کا کہ واقعی منصوبے مکمل نہیں ہوتے, واقعی ان کی جو رقوم ہے, ان کے جو فنڈز ہیں, ان سے بندر بانٹ کر لی جاتی ہے, افسان آپس میں بانٹ لیتے ہیں. دیکھیں نا کہ ملتان شہر کی کئی سڑکیں اس وقت نامکمل ہیں, ادھری ہوئی ہیں. جب ان سڑکوں کے نہ بننے کی وجہ معلوم کی جاتی ہے تو سننے میں مون یہ ملتا ہے کہ سیوریج کی پائپ لائن ابھی ڈلنی ہے. واسا والے کام کریں گے تو جو دوسرے ہائی وے ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ آ کر سڑک بنائیں گے. یعنی کہ ملتان شہر کی جو کئی اہم سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں, جو میرے سامنے سب سے پہلے پیرا غیب روڈ ہے, اس کے علاوہ کئی ایسی سڑکیں ہیں, میں مثال دی آپ کو, جو 3-4 سال سے ادھڑی ہوئی حالت میں موجود ہیں, لیکن جواز یہ دی جاتا ہے کہ واسا کام کرے گا, واسا کی جو سیوریج کی پائپ لائنز ہیں وہ بچھیں گی تو سڑک بنے گی نا. یعنی صرف واسا حکام کی نااہلی کی وجہ سے عوام کی تنگی کی آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ عوام جو ایک ذرائع آمد و رفت ہیں اس کی جو سہولت ہے اس سے بھی محروم ہے. ڈی جی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اور حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس قسم کے معاملات کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور اس طرح کے جو کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.